پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں C49. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نفیسہ قیوم. اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج کا دن ہر ایک کے لیے بہترین ہو. دن کا آغاز نئے جوش و جذبے سے کریں. ٹارگٹ بنائیں کہ آج کے دن ہم نے یہ کام کرنے ہیں. کامیاب لوگ ہمیشہ ٹارگٹ سیٹ کر کے لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں. آج کا شو بہت خوبصورت ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم اپنے مہمانوں سے کریں گے ڈھیروں باتیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہے C49 کے مقبول پروگرام موج مستیاں کے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ اور مریم نسیم. کیسی ہیں آپ مریم؟ صبح کا آغاز کس پیاری ہوں. صبح کا آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ جی میں بھی ٹھیک. صبح کا آغاز کس طرح کرتی ہیں؟ میں صبح صبح گھر والوں کو تنگ کرتی ہوں. صبح صبح اٹھتے ہی ساتھ میری فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ناشتے میں کیا بنا ہے. مجھے تو انڈا چاہیے تھا, انڈا کیوں نہیں بنا ہوا. اس کے بعد میرا سیکنڈ ہوتا ہے کہ کون سے میرے کپڑے پریس کیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ میری فیملی بہت سپورٹیو ہے. جیسے کہ میں جاب کرتی ہوں تو وہ میری ہر چیز کا خود ہی خیال رکھتے ہیں کہ اس ٹائم مریم کو یہ چاہیے. میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں تو وہ بھی ہر چیز کا کہ میری آپی کو ابھی یہ چاہیے, ابھی یہ چاہیے. میں بس ان کو نا بتاتی ہوں آپ میں نے وہاں پہ جانا ہے تو میرے یہ والے کپڑے پریس کر دینا. اور پھر میں آ کے بس پوچھتی ہوں میرے کپڑے کدھر ہے, مجھے پریس ہوئے مل جاتے ہیں. مطلب آپ کچھ خود بھی کرتی, ان پہ حکم لگاتی نہیں کرتی. ایون کہ کبھی چائے بھی خود نہیں بنائی, مجھے نہیں بنانی آتی. یہ بہت شرمندگی والی بات ہے, فخر کرنے والی نہیں ہے. لیکن اب میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں کوکنگ سیکھتی ہوں. بینگ اے گرل ہر لڑکی کو سیکھنے چاہیے یہ کام. ایگزیکٹلی اسی طرح. اور سر آپ کیسے ہیں صبح؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں نفیسہ, آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک. جی صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ جی صبح کا پوچھنا چاہ رہی ہیں. صبح کا آغاز جس طرح ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. صبح جب اٹھتے ہیں تو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. ایکسرسائز نہیں ہوتی, بہت تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے, کل کے کام جو ہوتے ہیں پینڈنگ, اور وہ سوچ رہے تھے کیا کرنا ہے. تو صبح نماز پڑھ کے ایک دفعہ سو جاتا ہوں, پھر اٹھتے ہیں تو آفس کی تیاری شروع ہوتی ہے اور ناشتہ کرتا ہوں. ناشتے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں نان چنے زیادہ پسند کرتا ہوں. نان چنے ہوں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. ویسے میں پائے شائے جو بھی ہو ناشتہ وغیرہ کر, لیکن گھر سے ناشتہ بہت مشکل ہے. گھر سے میں ناشتہ نہیں کرتا. بہت سال ہو گئے ہیں شاید گھر سے ناشتہ کیے ہوں. وہ کچھ لوگ انڈا سلائس کھاتے ہیں مریم, جی جی. میں انڈا سلائس نہیں کھاتا. میرے بچے نہیں, میں تو انڈا پراٹھا شوق سے کھاتی ہوں. اچھا انڈا سلائس نہیں, انڈا پراٹھا. آپ نے یہ ناشتے کا تو بتایا ہی نہیں. جو میں نے بولا تھا مجھے صبح انڈا چاہیے ہوتا ہے. بس کوئی بھی چیز جو مجھے پسند نہیں ہے نا, سالن جو بھی پکا ہوا یا کھانے کا موڈ نہیں ہے. اکثر لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے مطلب کہ بریڈ انڈا یا آملیٹ میں وغیرہ کے انڈا بنا دے مجھے. اسی طرح ہی ہوتا ہے. اگر کچھ نہیں ہے کھانے کے, چلے مجھے انڈا بنا دے, مجھے انڈا کھا لینا بس. اچھا, ہم آج تک آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں, آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ ہم ایک ہی پروگرام کی ہوسٹنگ کرتے ہیں موج مستیاں کی. آج آپ بھی ہمارے ساتھ موج مستیاں کرتی رہی لیکن آپ کی مصروفیت زیادہ تھی, اس لیے آپ نے مارننگ شو کو ترجیح دی. اور آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ناشتے میں کیا پسند ہے؟ جی مجھے تو صبح مطلب کہ ناشتے میں چائے مطلب ہو تھوڑی سی, ٹھیک ہے, ساتھ میں مطلب رس وغیرہ مل جائے جسٹ فار. یہ اتنا ہیوی ناشتہ صبح ارلی مارننگ نہیں کیا جاتا. جتنی آپ ہیلدی ہیں ناشتہ لگتا ہے ہیوی کرتی ہیں. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں کیمرہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہیوی ناشتہ نہیں کرتی. مطلب ہوتا ہی نہیں, انسان تو سارا کچھ بتا رہی ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کافی چیزیں کھاتی ہو. نہیں فاسٹ فوڈ تو کھاتے ہیں ہر کوئی, لڑکیوں کی پسند ہوتی ہے. آج پروگرام میرے خیال میں الٹا شاید ہو جائے کہ آج زیادہ تر سوال آپ سے پوچھے جائیں گے. آج یہ موج مستیاں والا قابو آ گئی. اب میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں صبح جب آپ اٹھتی ہیں, جی جی اٹھ جاتی صبح؟ ہاں جی صبح میں اٹھتی ہوں, ٹھیک ہے, مطلب ماما نہیں مدر اٹھا دیتی ہوں. وہ مطلب کہتی ہیں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے, جس طرح مرضی اٹھو نماز پڑھو. یعنی کہ آپ کو مدر کا ڈر اللہ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بیٹا مدر ہر حال میں نماز, اچھی بات ہے ماں باپ کا کہنا ماننا. بالکل. وہ پھر خود نہیں نا اٹھا جاتا, پھر وہ مطلب کہتے ہیں نیند پیاری جس طرح ہوتی ہے نا, ہر انسان کو نیند پیاری پھر زیادہ ہوتی ہے. اچھا, جب سے آپ نے پروگرام یہ شروع کیا ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں مارننگ شو کو. اور مارننگ شو میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے کچھ گیسٹ آتے ہیں تو وہ اپنی پروفائل, آپ ان سے ان کی پروفائل کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ پروفائل بتا کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح میں کچھ ہم کیونکہ موج مستیاں کرنے والے لوگ ہیں تو کچھ موج مستی والا کوئی پروگرام, کوئی آپ منورنجن, کوئی سانگ, کوئی اس طرح کا نہیں یہاں پہ انتظام ہے انتظام, بٹ ابھی میں نے مطلب یہ سٹارٹ نہیں کیا. نیکسٹ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا یہ موج, مطلب جس طرح سانگ وغیرہ ڈیلیکیٹس ہوتے ہیں, ہر چیز
इंशाल्लाह होगा जरूर। हम चूंकि म्यूजिक लवर लोग हैं, हम मौज मस्ती का शो करते हैं, म्यूजिक लवर है ना, इस वजह से। नहीं, वैसे ही म्यूजिक के साथ हमारे मेरा मौज लगाव है। मस्तिका में भी तीनों सेगमेंट्स में ना म्यूजिक ऐड म्यूजिक है। होता है, हाँ। और हम आपके प्रोग्राम में मौज मस्तियां के रंग भरने आए हैं। कोई बात आज नहीं। आपका प्रोग्राम शायद हम हाईजैक कर लें, मैं और मरियम, क्यों? इंशाल्लाह। क्योंकि हाईजैक कर चुके हैं ना, आपके सवालात होते हैं, वो हम ऐसे नहीं बैठ सकते। जी मैं 1900 नहीं मतलब वो है ना, वो मतलब कि एक बड़े लोग होते हैं, उनसे मतलब हम क्वेश्चनिंग छोटे लोग हैं ना, इसलिए हम छोटी सी बातें कर रहे हैं। नहीं, इस वो तरह बड़े नहीं, लोग मतलब आते हैं आप जी, तो ये exactly, नहीं- इस इज्जत अफजाई का मैं शुक्रगुजार हूं नहीं, जो आप आपने मेरी अपनी करती। टीम के है ना, इस वजह से मतलब वो होते हैं बाहर से आए होते हैं, उनसे उस तरह ते अपनी स्पेसिफिक टीम क्वेश्चन। दे अपनी टीम दे ते आपदे फौजी मारी जानी है। तो इस तरह बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़ा वो बेशक जो हमारे प्रोग्रामों में आज तक आए हैं, जी, जी। अच्छी वो ये कहना चाह रही मेरा है, कहने का मतलब ये है घर की मुर्गी दाल बराबर। वो नहीं, घर में नहीं, आप मतलब आपसे हर किस्म के सवाल ना भी करूं, आपको हेल्प घर की कर मुर्गी सकते हैं, दाल बिल्कुल। बराबर। इसी बात को आगे मैं बढ़ाना चाहता था कि वो जो लोग अब तक आए हैं वो बहुत ही शानदार लोग थे, बिल्कुल, बहुत और अच्छे थे। कसूर के वो बड़े आला दर्जों एग्जैक्टली, के बहुत, मुलाजिम जिनसे भी मेरी थे। मतलब मैंने इंटरव्यू लिया, हाँ, वेल डन, बहुत लेकिन आज अच्छे थे। आपका जो प्रोग्राम है शायद ये अलग तरीके से होने कोई वाला है, बात नहीं। जिसमें आपको देखें, प्रोग्राम जो होता है ना, वो ये होना चाहिए कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा तो बिल्कुल। हमारी कोशिश ये थी, मैं जब किसी शादी पे जाऊं, बस में सफर कर रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा हल्का फुल्का मजाक साथ में करता रहता हूं। ज़ाहिर होना चाहिए, कन्वर्सेशन में मजाक हो जाए, बंदा मतलब मूड खराब ना हो, अच्छा रहे भाई हमेशा ही इंसान का। वादा सा एक आपसे सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। वादा सा आपने बतौर एंकर पर्सन करवा सच के और अब मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, दोनों प्रोग्राम्स का रुख तब्दील है, मगर आप कामयाब क्यों हैं? कामयाब क्यों हूं? हाँ। आपको किसने कहा मैं कामयाब हूं? अब मैंने आपसे सवाल किया, मुझे अच्छा चलो जवाब मैं देता हूँ। ये असल में मैं समझू अगर मैं कामयाब हूँ तो वो मैं नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँ। मेरा ये कॉन्सेप्ट ये है कि इतना काम करो, अपने काम के साथ लगन इतनी रखो कि काम इतना ज्यादा कर जाओ कि काम खुद आपकी कामयाबी का ऐलान करे। इस तरह मैं ना करूँ, मेरा मौज मस्तियां बताए लोगों को कि ये कामयाब है बाजवा या मरियम, क्योंकि अब मेरी टीम का हिस्सा है और इस ये तरह बहुत अच्छा है, इसने पहला शो किया। नहीं, मैंने देखा, बड़ा बहुत मजा आया अच्छा। मुझे। फर्स्ट मैंने किया। फर्स्ट था लेकिन बहुत अच्छा था। मैं ये चाहता हूँ कामयाबी चीख चीख के ऐलान करे तो फिर मुझे भी पता चले बाहर से मैं कामयाब। एग्जैक्टली ये इसी तरह, मुझे- इस तरह ही है। जी। जी मरियम, आपसे मेरा सवाल है, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की और आपने कब से स्टार्ट की? तालीम तो मैंने, जैसे पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि जॉब के हसूल के लिए या नंबरों के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि घर वालों के डंडे के डर की वजह से मैं शुरू से ना पढ़ाई से बहुत चालू हूँ। मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, किसी भी चीज़ में मेरी स्केचिंग अच्छी थी, ड्राइंग भी अच्छी थी। स्कूल में मैं ड्राइंग वगैरह चार्ट बना के ले जाती थी, यहाँ मैं स्पीचेस में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन स्टडीज़ के हवाले से मैं थोड़ी सी नालायक रही हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने हमारे मोहल्ले में ही स्कूल था, तनवीर पब्लिक स्कूल, वहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की है। उसके बाद पाकिस्तान मॉडल स्कूल से तालीम हासिल की है, और सिम्स कॉलेज वो कसूर में 1-2 साल ही चला था। सबसे फर्स्ट जो उनका बैच था उसमें हम लोग थे, उसके बाद वो कॉलेज फ्लॉप हो गया था क्योंकि उसमें अरे हम कॉलेज ही जैसे flop कर दिया था। जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। और उसके बाद मैं मेडिकल फील्ड में आ गई थी, मैंने ओटी टेक्नोलॉजिस्ट किया हुआ है और अभी मैं एलएचबी कर रही हूँ, वो कंटिन्यू है। Wow, हॉस्पिटल wonderful. में मेरा मेडिकल फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस है, वाओ, गुड, मेडिकल में भी मैंने Very job की। good. वेल डन, बहुत अच्छी आपकी ट्रेनिंग जा रही है और मतलब। मैं प्रोफेशनल फील्ड में जितनी भी जॉब्स की हैं ना, मैं एक एनजीओ में काम करती थी एज अ वॉलंटियर। सबसे अच्छा मुझे वहां पे काम करके लगा है, जो हम गरीब लोगों की हेल्प करते थे, अनपेड काम करते थे हम लोगों के लिए। चाइल्ड लेबर भी हमने काम किया था, जो छोटी एज के पर ये बच्चे वैसे इस मजदूरी तरह वगैरह होता तो करते नहीं है हैं। कि मतलब कि जिस तरह आपका मैं सुन के मुझे खुशी हुई, बट इस तरह जिस तरह लड़कियां करती हैं ना, वो हर कोई लड़की पैसे के पीछे भागती है विदाउट मतलब के पैसे के नहीं, वो कुछ नहीं हम करती। लोगों को एनजीओ वाले पे करते थे। जी, जी। लेकिन ये कसूर में हमने ये काम किया था चाइल्ड लेबर पे, कि जो बच्चे काम करते हैं स्टडी की एज में, जी, जी। और वो स्टडी इसलिए छोड़ देते कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में हमने उनके एडमिशन्स करवाए थे, और जितना वो मंथली 5-6 हज़ार कमाते थे वो एनजीओ उनको पे करती थी।
تو مجھے سب سے زیادہ خوشی وہاں پہ کام کرنے میں ہوئی تھی. جب ہم سروے کرنے نکلتے تھے گھر میں بہت ہمیں مشکل بھی ہوتی تھی, جہاں پہ بچہ جاب کر رہا ہے وہاں پہ ہم نے جا کے اس کا انٹرویو کیا آپ کو گھر سے پرمیشن مل جاتی تھی کہ آپ جو سروے گھر کرتی سے تھی؟ پرمیشن تھی, بلکہ میرے گھر والے لڑکیوں کو نہیں appreciate ملتی کرتے تھی, تھے. کچھ لڑکیاں ہوتی میری ہیں. مدر تو اپریشیٹ کرتی تھی اس کام کے لیے مجھے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے گو گرین پاکستان ایکٹیویٹی کی تھی, پودے لگائے تھے اور لوگوں کو ہم نے بتایا تھا کہ پودے لگانے کی کیا اہمیت ہے. اور اس کے بعد فیملی پلاننگ جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں, اس پہ بھی میں نے کام کیا تھا. اور اس میں بھی ہمیں بہت مشکلیں آئی تھی. انہوں نے ہمیں دیہات والے ایریاز دیے ہوئے تھے, تو وہاں پہ جا کے لوگوں کو فیملی پلاننگ کی اہمیت بتانی تھی. لوگوں کے ذہنوں میں ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے فیملی پلاننگ کو لے کے. بہت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی پلاننگ مینس اسٹاپ ڈیولپمنٹ آف چائلڈ, کہ آپ نا اور پروڈیوس نہیں کر سکتے بچے, ان کو یہ لگتا ہے لوگوں کو. تو ان کو ہم نے بتایا کہ فیملی پلاننگ جسٹ یہ کہتی ہے کہ ایک بچے کے بعد دوسرے میں آپ وقفہ رکھیں, اس سے اگلے آنے والے بچے کی بھی صحت اچھی ہوگی اور مدر کی بھی صحت اچھی ہوگی. یہ ہم نے کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں, لیکن جو بیکورڈ ایریاز تھے دیہاتوں میں زیادہ ہم نے کام کیا تھا, تو وہاں پہ ہمیں بہت برا رسپانس ملا تھا. لوگ ہماری بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے. جیسے ان کو پتا چلتا تھا فیملی پلاننگ سے یہ لوگ ہیں, تو 3-4 گھروں سے عورتیں اکٹھی ہو کے اور وہ بدتمیزی سے ویسے تو دیہات کا ماحول بہت مختلف ہوتا ہے. یہ جو ایک مدر ہوتی ہے وہ بچے کو جنم دینے والی جب ہوتی ہے, تو اگر وہ کسی پور فیملی سے ہے تو اس کو وہ لوازمات کھانے کے لیے نہیں ملتے ان دنوں میں, تو وہ جو اس کو کیلشیم چاہیے ہوتا ہے, وہ بچہ 1000 ملی گرام میرے خیال میں اس عورت کو کیلشیم چاہیے ہوتا ہے. تو وہ تو غریب گھرانے سے تعلق ہوتا ہے, تو روٹی کھا سکتی صرف, اور جو بھی وہ میسر ہو. پھر اللہ نے اس بچے کو پالنا ہے. اب بات یہ ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ اس بچے کو اس عورت کی ہڈیوں میں سے کیلشیم ملتا ہے. بالکل اسی طرح ایسے ہی ہے نا, عورت کی ہڈیوں سے کیلشیم بچے میں چلا جائے گا, اس کی تو گروتھ ہونی ہے نا, اس کو اللہ نے دینا ہے. تو عورت کو اتنی ویکنس ہو جاتی ہے, یہ مسئلہ ہے. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ویکنس ہو جاتی ہے. اور چائلڈ برتھ پہ چاہے وہ آپ کا سی سیکشن ہے یا نارمل ڈیلیوری ہے, آپ کا بلڈ لاس ہوتا ہے. تو لوگ اس چیز کو بھی نہیں سیریسلی لیتے کہ ہمیں آئرن انٹیک لینے کی ضرورت ہے. سپلیمنٹ لے سکتے ہیں آپ, آئرن کی ڈرپ لگوا سکتے ہیں. وہ پھر جب لاسٹ سٹیج میں میں نے بہت ایسے پیشنٹ دیکھے پورے 9 منتھ وہ چیک اپ ہی نہیں کرواتے کہیں پہ بھی, نہیں کرواتے, اور لاسٹ پہ جب بالکل ان کا ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے, ان کی ایچ بی آ رہی ہوتی ہے 6, نارمل 12 اپنے آپ کو پھر بھی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے. ایٹ اے ٹائم 12.5, تو جب ان کے 6 آ رہی ہوتی ہے, ابھی کل ہی یہ میں نے ایک پیشنٹ ڈیل کیا ہے, 6.9 تھا اس کی ایچ بی تھی, اور بلڈ ان کا ارینج نہیں ہو رہا تھا. اب اس ٹائم پہ ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائم بھی پورا ہے اور ڈلیوری بھی ہونی ہے. اور پھر اسی طرح مریم ہوتا ہے, میں آپ سے ایک بات کروں گی, پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سارا بلیم ڈاکٹرز پہ لے آتے ہیں. یہی میں بات کرنے لگی تھی, سارا بلیم ڈاکٹرز پہ لے آتے ہیں. یا تو بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے یا ماں کی جان کو, یا پھر بہت ریئر کیس ایسے بھی میں نے دیکھے کہ دونوں ہی نہیں بچتے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں ہاسپٹل سے کروایا تھا اور فلاں ڈاکٹر تھی, اس کی نیگلیجنسی کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے. حالانکہ قصور جو پہلے 9 منتھ آپ نے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ ہی نہیں کروایا, غلطی آپ نے وہاں پہ کی ہے. اب آپ اینڈ پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی غلطی ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا, 6 ایچ بی کے ساتھ وداؤٹ بلڈ آپ آگے, بلڈ رینج ہی نہیں ہے, ڈاکٹر وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. اور اللہ نہ کرے خطرہ بچے کو بھی اس طرح ہو سکتا ہے, کیونکہ مدر کی جس طرح ایچ پی کم ہے تو بچے کو ویسے ہو سکتا ہے. جی جی بالکل. اور وہ بچے بھی اتنی ان کی گروتھ نہیں ہوتی, اور وہ بعد میں ذہنی طور پہ بھی تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, جسامت کے لحاظ سے بھی وہ کمزور ہوتے ہیں. سر باجوہ صاحب میرا آپ سے تو اتنی گفتگو کر لیا, آپ چپ کر کے بیٹھے. میں بھی درمیان میں تھوڑا سا بولا. جی بالکل. آپ نے اب تک کن صحافتی اداروں میں کام کیا اور اسلام آباد سمیت کن علاقوں میں سفر کیا؟ جی میں پچھلے کوئی 20-22 سال سے اسلام آباد مری میں تھا. میں مری میں میرا بزنس تھا. ہم تو گئے نہیں ابھی تو آپ کو انشاءاللہ چلیے گا, موسٹ ویلکم. تو وہاں پر سیٹ اپ ہے میرا تھوڑا بہت. تو میں اسلام آباد پریس کلب میں کچھ کام کرتا رہا ہوں, لیکن میرا یہ شوق بڑا پرانا ہے. اور جب مجھے اصل میں ایکٹنگ کا شوق تھا, مجھے ایکچولی جو شوق تھا وہ تھا ایکٹنگ کا. اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں ایک میوزک لور انسان ہوں, اور مجھے جو محمد رفیع صاحب جو نا انڈین سنگر تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, بہت بڑا نام تھا برصغیر کا. تو وہ ان جیسی کوئی آواز میں نے نہیں سنی اپنے کانوں میں ایز اے سنگر, کوئی اتنا بڑا کوئی سنگر ہو ورلڈ میں.
तो वो सदियों बाद भी कहते हैं ना पैदा हो जाते हैं, मेरे ख्याल में नहीं कोई पैदा होगा। नहीं होता इसी तरह। तो इस तरह फिर मुझे 2 साल हो गए इधर आए को, वापस मैं गया नहीं हूँ बच्चों की वजह से। बच्चे जो थे वो मुझे मिस करने लग गए थे, मैं बच्चों को साथ ले गया था। इस तरह होता है, पेरेंट्स तो को बड़ी जल्दी मैं मिस साथ करते गया, हैं। लेकिन उनका दिल नहीं लगा, तो फिर मैं इधर आ गया हूँ। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं C49 पे हूँ, और C49 का बहुत शुक्रिया हाजी अकरम ज़की साहब ने मुझे जो कहा कि आप इस चैनल पे काम करें, तो मैं कर रहा हूँ। ताक़ सूरी साहब का बहुत शुक्रिया, वो सीनियर नायब सदर हैं, नायब चेयरमैन है, सॉरी वाइस चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी मरियम साहिबा, आपको मतलब अपने जो उनसे अपनी लाइफ का स्टार्ट किया, आपको इनमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है एज अ गर्ल, और वो मैं हैरान हूँ कि आजकल के दौर में भी ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान बनने से पहले उस टाइम फातिमा जिन्ना की एज कितनी ज्यादा थी, बिल्कुल इस और तरह वो ही। कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कंधे के साथ खड़े होते थे। बिल्कुल इस वहां पे कितने ऑडियंस होते थे, मेल होते थे। वो उस दौर में एक पढ़ी लिखी खातून अपने भाई के कंधे के साथ कंधा मिला के इतने मर्दों तरह के ही। सामने खड़ी होके बात करती थी। और पाकिस्तान को बने हुए 75 से 76 साल हो गए हैं, और इतने मिलते हैं नाज, इस तरह ही हमारी कन्वर्सेशन चलती रहेगी। मिलते हैं नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना सुबह 8 बजे, दूसरा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मरियम, मैं आपसे बात कर रही थी, सॉरी आपसे वो थोड़ी कटिंग होगी। नहीं, आपने ब्रेक ही लेनी दरमियान में से, तो वो ब्रेक भी तो लेना जरूरी होता है ना। जी मरियम, आपसे सवाल था कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ मतलब कि किस तरह स्टार्ट करो, आपको इनमें किन किन मुश्किलात का सामना करना जी पड़ा? मैं यही बता रही थी कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कह के रोकने की कोशिश की कि तुम एक लड़की हो, यानी कि 100 साल बाद भी लोगों की सोच चेंज नहीं हुई। उनको ये लगता है कि लड़की को स्टडी नहीं करनी चाहिए, लड़की को जॉब नहीं करनी चाहिए। मेरी फैमिली में मैं वाहिद लड़की हूँ जो जॉब कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकती हूँ मेरी फैमिली से कोई लड़का भी इतना नहीं कमा रहा जितना मैं कमा रही हूँ। इस C49 के अलावा भी मैं डबल जॉब करती रही हूँ, साथ में स्टडीज करती अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना कमा रही हूँ ना, और मेरी फैमिली से कोई लड़का भी नहीं अभी तक इतना कमा रहा। मैं ये ऑन स्क्रीन लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करता हूँ। मैंने भी ये सुना। तो और मुझे मैं एक बड़ा अच्छा वाकया इसके रिलेटेड क्या मुश्किलें आई जब मैं मेडिकल फील्ड स्टार्ट की ना, OT टेक्नोलॉजिस्ट में मैंने एडमिशन दिया। अभी वो मैं जॉब तो नहीं कर रही थी, स्टडी थी मेरी। तो मेरे भाई के ना एक फ्रेंड ने उसको बोला कि आपकी बहन जो है वो मेडिकल फील्ड में जा रही है, वो हॉस्पिटल जा रही है, उनका तो माहौल नहीं अच्छा होता, उधर ये होता है वो होता है सारा कुछ। और मेरे भाई ने घर आके कहा भी इसे को कल से नहीं जाना, और मैं परेशान, मैं 2-3 दिन नहीं गई। फिर मैंने गुस्से से कहा मैंने तो 1.5 लाख फीस दी है, मेरी फीस वापस करें, फिर मैं नहीं जाऊंगी। घर वालों को धमकी लगा के, और फिर मैंने दोबारा से जाना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं 2nd ईयर में थी ना, मेरे भाई के उसी दोस्त ने जिसने ये कहा कि आप इसको वहां पे ना जाने दें, मेरा भाई आके मुझे कह रहा है उसकी सिस्टर जा रही है वहां पे तुम्हारे ही कॉलेज में, और अपनी ना 1st ईयर की बुक्स उसको दे दो।
मुझे बड़ा ही बुरा लगा। मैंने कहा ये वो बंदा है जो कह रहा था कि अपनी बहन को वहां पे ना भेजो, तो मैं अपनी बुक्स क्यों दूं? बिल्कुल। मैंने अपनी बुक्स नहीं उसको दी। मैंने कहा मैं इसकी सिस्टर को अपनी बुक्स नहीं देनी, किसी और को दे दूंगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लोग इस तरह से भी पीछे को खींचते हैं कि ये लड़की है। बहुत लोगों का काम होता है कि हमको हाँ। आगे बढ़ ना सके, बस तो हम फिर लोग ही आप बढ़े। दूसरों के लिए कह रहे हो कि लड़की के लिए ये अच्छी नहीं है, तो फिर अपनी बहन को क्यों वहां इसी तरह होता है, बिल्कुल। वो डिक्रिएट करते, डिसार्ड करते हैं, डिसार्ड करते हैं और फिर अपनी फैमिली के लिए वो सारी चीजें अलाउ होती हैं, बिल्कुल दूसरों इसी के लिए तरह वो ही है। banned होती हैं। बाजवा साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कौन, एक मिनट, सवाल चेक कर लो पहले। वो मैंने सवाल आपका लिखा हुआ था कि मुझसे पूछ लो। फ्यूचर में आप मजीद क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में अब कौन सा फ्यूचर पीछे रह गया? मैंने इस वजह से स्पेशली क्वेश्चन सोचा, फिर लिखा, मैंने कहा इनसे ये क्वेश्चन जरूर करना है। कि फ्यूचर में क्या क्या करना करना चाहते हर इंसान ये हैं? सोचता हमें भी है। सीखना चाहिए, हमसे बड़े हैं, कि फ्यूचर इनका क्या, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है। Plannings क्या है, बिल्कुल, आगे। प्लानिंग्स पता होनी चाहिए हमें भी। कुछ- मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि नफीसा के फ्यूचर के बारे में अब होता ये है कि मैं तो अपना फ्यूचर करीब है ना मेरा, तो बिल्कुल। मैं अब अपने बच्चों का जो फ्यूचर है ना वो सोचूंगा। जब बंदा मैरिड होता है तो वो फिर अपने बच्चों का फ्यूचर सोचता है। जी, जी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सिक्योर हों, मेरी आने वाली नस्ल वो सिक्योर हो, और ऐसी सिक्योर हो कि मैं वो उनको कोई मसला ना हो। ठीक है, उसके लिए हमें उनके लिए कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल, लाजमी इस नहीं कि तरह ही बंदे के पास दौलत वाफर हो तो वो ये इस तरह नहीं होता। होता। ये है कि बिल्कुल। आपके पास जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग अच्छी प्लानिंग, अपने बच्चों को बैठाकर उनको अपने प्लान का हिस्सा बनाएं। ठीक है, और बुरी आदतें ना हो, जैसे हम अपने कल एक शो में कर रहे थे मौज मस्तियां में कि जो नशे पे लोग लग चुके हैं उनका क्या हाल हो चुका है। लेकिन बात ये करना चाह रहा हूँ कि आइंदा का जो लाएअमल है उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें अपने आप को सिक्योर करना है। हमें एक ऐसा फ्यूचर, किसको कहना, मैं तो फ्यूचर दुनिया को नहीं समझता, मेरा फ्यूचर तो आखिरत है। मैं आखिरत को फ्यूचर समझता हूँ। मैं यहाँ अगर कुछ काम करूंगा तो मेरा जो फ्यूचर मुझे मिलेगा ना, उसका जो अजर मिलेगा वो मुझे आखिरत में मिलना है। मैं ये सोच रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि बंदा नमाज पढ़े, किसी के साथ ज्यादती ना हो। अगर पीछे मेरे पास्ट में किसी के साथ कोई ज्यादती अगर हो गई हो तो मैं अल्लाह से भी माफी मांगू और उन लोगों से भी माफी मांगू अपनी जिंदगी में कि यार अगर मुझसे कोई गलती, कोई कोताही, कोई मसला हो गया तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरा फ्यूचर है। बहुत अच्छा फ्यूचर आपका, सुन के बहुत मजा आया हमें फ्यूचर सुन के। जी मरियम, आप अपनी कोई जिंदगी का फनी वाकया बताएं हमें। फनी सारे वाकया दे फनी नहीं, हम कुछ और फनी सुनना चाहेंगे। फनी है ना, कोई वाकया से बताएं अभी आप। ना पिछले मंथ ही एक हुआ है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। प्रैंक ही जस्ट समझ लें कि हुआ है मेरे साथ। मेरी आगे कजने तो आई हुई pranks थी। होते हैं। मेरे साथ होते हैं। मेरी कजने आई हुई थी हमारे घर, तो सुबह सुबह ना मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले हैं। तो हम सारी गर्ल्स थी, हमारे साथ 2 बॉयज थे और वो भी छोटी एज की, एक 10 साल एज की, एक की दूसरे की 12 साल थी। अच्छा जी। तो हम लोग ना इधर से घर से निकले, लंबा चक्कर लगा के बाईपास पे, वो फिर भट्टी हॉस्पिटल के आगे से होके और घर की तरफ वापस आ रहे थे। उतने में काफी धूप भी हो गई थी और हमें गर्मी लग रही थी, प्यास भी शिद्दत की। सुबह का टाइम था और किसी के पास कुछ भी नहीं था, अपने बैग्स कुछ भी नहीं। हम तो घर से मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। मेरे पास जस्ट एक मोबाइल था। तो उधर ना शरदाई वाला खड़ा हुआ था, वो अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास है। जी जी। तो वहां पे ना हम बैठ गए। पहले तो मैंने अपने कजन को भेजा, छोटा सा था जो। मैंने कहा उसे पूछ के आओ कि आपके पास जैज कैश है। वो पूछ के आया, मुझे कहता कि वो कह रहा हाँ है। हम जाके बैठ गए। हम टोटल 15 लोग थे और हमने 15 क्लास लगवाए हैं। जब बाद में 1500 बिल बना है ना, तो वो आदमी कहता है हमारे पास तो नहीं जायज कैश है। वो कहता ना मुझे तो लगा कि बच्चे ने आके ये पूछा कि आपके पास जग है, तो मैंने तो इसको बताया था जग है। वो बड़ा मेरे लिए ना शर्मिंदगी वाला भी था। मेरे साथ ये सिर्फ आपके लिए शर्मिंदगी, उनके लिए बड़ा फनी था। जैज कैश फनी बाद में हुआ है, उस जैज टाइम कैश वालों के शर्मिंदगी लिए शर्मिंदगी कि उनकी जैज कैश का नाम जग रख दिया जग गया। रख जग दिया। रख दिया गया। हालांकि उधर से पैसे ट्रांसफर होते आते जाते उन्होंने कहा जग ही आ गया। उनको समझ नहीं, छोटा बच्चा था ना वो जो पूछने गया। तो उस टाइम ना मैं बड़ी शर्मिंदा, मेरे साथ मेरी कजन है और वो भी मेहमान आए हुए थे हमारे घर पे। तो हमें समझ कुछ भी नहीं लग रहा था कि इस टाइम क्या करना है, इस सिचुएशन में हमने इसको कैसे हैंडल करना है। खैर काफी देर सोचने के बाद ना मैंने उनसे ये कहा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं क्या कहूँ, हमने पी लिया और हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने उनसे ये कहा कि सर आप ना मोबाइल रख ले, हमारा घर पास है तो हम आपको पैसे भेज देते हैं।
लेकिन वो भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला कि आप अपना मोबाइल भी ले जाए, हमें बाद में पैसे भेज दीजिएगा। फिर हमने इस तरह बहुत कम लोग नहीं दुनिया मैं समझा कि वो बहुत कम कहने लोग। लगी वो भाई बड़े अच्छे से मैं रख लूंगा। नहीं, उन्होंने बोला कि आप पैसे, उनको समझ लग गई वैसे कि आजकल दुनिया इस में तरह बहुत से- इस तरह कम लोग हैं जो दूसरों की मतलब हेल्प वगैरह करते हैं या मतलब एक हेल्प ही की ना, तुम्हारे पास पेमेंट है भी थी बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब कहा कि आपके साथ कोई प्रैंक हुआ है मेरे इस तरह कोई? मेरे साथ तो तक फिलहाल इतना प्रैंक नहीं इस तरह का, वो कहता है पैसे दो फिर जाएंगे हम। नहीं लोग अक्सर भाई आपको को भी देखते डर तो कह नहीं जाते डील डोल वाली कहीं लगाना, हालांकि मरियम कराटे जानती हैं। हाँ मरियम जानती है, उसने काम कहती मैं ट्रेनिंग भी की हुई है मैंने हर चीज की। चैंपियनशिप विन की है साहिवाल में ना। हम डरते हैं ताइक्वांडो मरियम से में। कहीं हमें हमारे साथ ही ना स्टार्ट हो जाए। मैं खुद बड़ा डरता नहीं, मैंने हूँ। बस सेल्फ डिफेंस के लिए सीखे हैं, जैसे वैसे कि होना पंजाब चाहिए, पुलिस में हमें एक भी इस तरह वाकया हुआ है, तो मैं ये समझती हूँ कि हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो बिल्कुल। किसी ये से हर जो लड़की को लड़का सीखना है ना, चाहिए। अगर कोई लड़की हो तो उसको सिखा दीजिए, पता है कैसे करे, उसको बंदूक भी दे दियो तो पता है क्या करे, दफा यार नहीं तो मैं बंदूक साट के देता हूँ ना, इधर बंदूक मार के आहो इस तरह हमारे जैसे लड़के इस तरह मैंने कर देते मैं बंदूक साट के तेरे वाल कूट लेने उन्हें है कहना। बट मरियम में सेल्फ डिफेंस है हर नहीं, चीज जब है। आप ये सीखते हैं ना कराटे, जी। या ये हमारी तो टाइक्वांडो लवर थी, तो जब आप ये सीखते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आप आ अपने जाता उस्ताद का है। नाम लें, वो बहुत बड़ा बहुत नाम सारा है। अमीन साहब, अमीन हाँ, साहब, उन्होंने अमीन कसूर कमांडो। के अमीन कमांडो साहब, कसूर के बहुत लोगों को उन्होंने इधर ये से मैं सिखाया। आपसे सवाल करना उनके सिखाए हुए चाहूंगी, स्टूडेंट्स हाँ, हर फील्ड में जी, काम कर रहे हैं। और आपने ये कब मतलब स्टार्ट किया और आपको मतलब जब इस तरह आपने वर्क किया किस तरह का आपको लगा? मैंने 2 साल और बाकी पहले- आप क्या कहना चाहेंगी बाकी 2 वर्क साल के बारे पहले में? स्टार्ट किया था जी, कि जी। मैंने, और फिर बीच में गैप लिया था जब मैं एनजीओ की जॉब करती रही हूँ तब। अभी भी कंटिन्यू है, मैं अभी ग्रीन बेल्ट हूँ, इंशाल्लाह मैंने ब्लैक बेल्ट तक जाना है, अभी ग्रीन बेल्ट हूँ मैं, जरूर, इंशाल्लाह। क्यों नहीं जी। बाजवा सब आपसे भी सवाल कर लेते हैं, आप अब चुप आप करके तो बैठ बोलिए। जाते हैं। ये क्या कहा आपने सवाल? मैंने कहा चुप करके आप बैठ जाते हैं थोड़ी नहीं, आप देर। पूछेंगे, मैं चुप करने वाला हूँ नहीं। मैं तो बिल्कुल रिस्पेक्ट लग कर रहा रहा हूँ, मैं मरियम की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ जब वो करनी बोली। चाहिए बिल्कुल इस जी, तरह। जी। आप C49 में काम कर रहे हैं, आपको इधर कितना अरसा होगा और आप इधर काम करके कैसा लगता है? अरसा कितना हो गया पहले ये पूछा आपने? हाँ। अरसा तो ज्यादा नहीं हुआ, अभी 1 साल हुआ मेरे ख्याल में। मतलब अरसा नहीं हुआ, अभी साल ही हुआ। साल ही हुआ, अरसा तो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल इस और तरह। सीखना, मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, मेरे यहाँ पर जो उस्ताद हैं अता कसूरी साहब हैं, वाह। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा जी, है। जी। बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही दूर की वो सोचते हैं। वो उनके साथ भी एक प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ। वो हालात हाजरा पे उनका प्रोग्राम है, करंट अफेयर। करंट अफेयर्स कसूर मैं की जो- देखती हूँ रोज रात को ये तो वो बहुत सारे current लोग affairs। उसको पसंद भी कर रहे हैं उस प्रोग्राम को ना। मैं जब भी आजकल मैं कहीं गया हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मौज मस्तियों के बजाय करंट अफेयर के बारे में बात, क्योंकि वाह। लोग परेशान हैं, तो जी, वो जी। सोच रहे हैं कि ये जो परेशानी हमें आती है दफातर में, सरकारी दफातर में, तो क्यों ना हम इनसे राब्ता करें करंट जी, अफेयर जी। वालों से। तो ये वो जो हमारी परेशानी है वो उसमें वो शेयर करेंगे, तो वो उस पर एक्शन भी हुआ है। इस तरह ही होता हाँ जी, अभी शुरू किया, उस पर एक्शन भी होना शुरू हो गया। और मजीद ये कि C49 बहुत ही शानदार चैनल है, मकामी चैनल है, और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल, आपकी बात मुझे किया, आप कहते थे चैनल, ये चैनल इतनी तरक्की करे। मेरा अभी तक इस वजह से मेरे C49 के फिर मैंने कहा चैनल ये ना कह दो, फिर कहेगा ये हाँ, ये चैनल जो है ना, ये इतनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। इस पे मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तमाम के तमाम, आप समेत, आप लोगों समेत सभी मेहनत कर रहे हैं। आपको भी इसका क्रेडिट जाता है। इंशाल्लाह। और हाजी अकरम जकी साहब क्योंकि हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, और हमेशा सलामत रहे वो, इंशाल्लाह, तो आमीन। चैनल भी सलामत रहेगा इंशाल्लाह ताला। और हम सबको अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे कि हम सच की आवाज लोगों तक पहुंचाते रहें। बिल्कुल इस तरह। मरियम, आप मुझे बताया आपने अस्पताल में जॉब भी की, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, जी, जी। और आपको उधर मैं सुनने को आता है कि उधर हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स होती हैं वो सही से ट्रीटमेंट नहीं करती हैं, क्या है ये ठीक है? सही से ट्रीटमेंट नहीं मतलब कि करती। उनको जिस तरह होता है ना, उनकी सेफ्टी वगैरह के लिए कुछ इतने इंतजामात नहीं होते हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स अवेयरनेस नहीं, ज्यादा ये करती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो सारी सहूलतें और डॉक्टर्स का बिहेव, जी, जी। ये आपका मैं क्वेश्चन समझी हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये है, जी, जी। और मैंने खुद भी ये चीज मेरे साथ बहुत दफा एक्सपीरियंस हुआ है। एक ही डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में बैठा है, वहां पे पेशेंट को किसी और तरीके से ट्रीट कर रहा है, और प्राइवेट में किसी और से ट्रीट जी, कर जी, रहा है। इस तरह ये ही ना होता है। सिर्फ कसूर में, लाहौर में भी इसी तरह से है। या वहां पे ही बैठे बैठे डॉक्टर कह देता है कि आप मेरे पास प्राइवेट में आ जाना, और यहाँ फिर वो वहां भी इस तरह का सलूक करेगा कि पेशेंट मजबूर हो जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमने सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आना। तो ये ना थोड़ा सा मैनेजमेंट का इशू है,
जैसे कि हम किसी भी KFC या मैकडोनल्ड्स में जाते हैं जी, या जी। किसी बैंक में जाते हैं तो लोग अपना टोकन लेके साइड पे बैठ के बड़े डिसिप्लिन के साथ वेट करते हैं अपनी बारी आने का। अगर ये बाकी के इदारों में मैनेजमेंट ये वाली आ सकती है तो फिर सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं आ सकती? वहां पे भी तो इतना ज्यादा रश नहीं होता, वहां पे भी आवाम को हम इस तरह से डील कर सकते हैं कि वो अपना टोकन लेके और बैठ के और अपनी बारी का इंतजार करें। बल्कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज्यादा रश होता है और वहां पे रात को 12-12 बजे तक OPD चल रही होती है, तो वहां पे भी तो यही आवाम होती है, यही रश होता है। और यही डॉक्टर जो मॉर्निंग में DHQ में बैठते हैं वो शाम को अपने किसी प्राइवेट क्लिनिक पे बैठे होते हैं, वहां पे एक पेशेंट पे आधा घंटा लगा रहे होते हैं। अगर वहां प्राइवेट में ये रश वाली चीज को ये मैनेज कर सकते हैं तो ये सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो रहा? उसी तरह होना ये चाहिए हमारी ना वैसे। गवर्नमेंट से भी अपील है कि थोड़ा सा इस सरकारी अस्पतालों को बेहतर किया जाए, क्योंकि ये अवाम को बहुत ज्यादा परेशान करती है। जो गरीब अवाम प्राइवेट इनके सेटअप्स नहीं अफोर्ड कर सकते वो यहाँ पे इलाज करवा ये सकते। जो डॉक्टर हजरात है ना, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो इनका बिहेवियर वाकई है, जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो हकीर समझेंगे हम लोगों को, जी, जी। ये कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह इनसे समझा घबरा जाता है, जाओ, बिल्कुल पीछे इसी हटो। तरह। जब इनके हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो फिर ये समझे कि हमारी फूफी का बेटा आ गया है, इतनी ज्यादा इज्जत देंगे, बहुत पता नहीं इनको इसी तरह ही इनको है। मोटी फीस लेने वाले हैं। उसके बाद जनाब ये जो मेडिसिन लिख के देनी है ना, ये भी और कहीं से नहीं मिलेगी, जहाँ से इनकी कमीशन बनती है ना वहां वहाँ से से। मिलेगी। और इधर जी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी सफाई मैंने खुद देखा, मतलब कि सफाई सुथराई का कोई हालांकि इतना बहुत ज्यादा स्वीपर्स हैं, Sweepers प्राइवेट हैं। हॉस्पिटल्स में 1 या 2 स्वीपर होते Sweepers हैं, हैं। सैलरी भी उनकी बहुत कम होती होती है, है, गवर्नमेंट इनकी की salary भी ज्यादा होती है। ना सिर्फ स्वीपर और डॉक्टर स्टाफ जो है, इनकी नर्सेज जो है, उनका भी बिहेव बहुत चेंज है। बहुत चेंज है। जो प्राइवेट में पेशेंट आता है ना तो उसका अगर सैंपल लेना है, स्टाफ आएगी वो लेगी, लैब तक लेके जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल में वही पेशेंट है, वही स्टाफ है, वही डॉक्टर्स हैं, तो वहां पे स्टाफ बैठी रहेगी, उनको कहेगी वो वहां पे लैब है, आप चले जाएं सैंपल देके आए। एग्जैक्टली सही एक कह बंदा रहे जो है पेशेंट वो चल भी नहीं सकता, वो उठ के वहां तक जाए और वो सैंपल दे के आए और फिर उनकी रिपोर्ट उनको दी जाएगी। हैं। मिलते हैं नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी बाजवा साहब, मेरा आपसे सवाल है वजह से पहले मुंह ऐसे बना लेते हैं। अच्छा मेनू देख के ऐसा लगा ਜਾਂਦਾ, चलो बताएं क्या सवाल है। आप मौज मस्ती जिस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, आप मतलब जब मेहमानों को मतलब बुलाते वगैरह, कोई आपका जिस तरह वो टकला बजाने वाला आप पतीला पतीला क्या कसूरी साहब? जी, आप उनको रेसलिंग जिस तरह वो कुछ भी बोलते हैं वगैरह, आप उनको पहले बताते हैं या मतलब वो खुद ही मतलब वो हो जाते हैं? नहीं, वो कुछ तो उनको पहले आते हैं सॉन्ग, जी, जी। काफी ज्यादा, लेकिन जो सॉन्ग मैंने करवाना होता है, जो मेरी मर्जी का जी, होता है, जी। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये सॉन्ग क्या प्यारी कर दो। वो आपने देखा भी होगा नेट पे, जी, मैं जी। उसको भी डाल देता हूँ रेसल को, ताकि पता चले हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो जहाँ पे वो अच्छे सिंगर हैं पिक कर लेते हैं। नहीं अच्छे, मैं भी 2 दफा मतलब बैठी हूँ ना उनके पास, बड़ी माशाल्लाह उनकी अच्छी आवाज हाँ है। जी। उनकी अच्छी आवाज है और मैं उनका सॉन्ग सुनने के बाद ना जाके मैं फिर यूट्यूब से सर्च कर रही होती हूँ। और मैं तो इस तरह, और- मैं एक फनी बात बताऊँ, हाँ, शो पे बोलिए। भी बैठी होती इस तरह, ठीक है, कोस्ट होती है ना, वो मौज मस्तियाँ की थी पहले, अब आप आ गई हैं, ठीक है, बैठी होती हो जिस तरह नात एक दफा उन्होंने पढ़ी, मुझे तो उधर नींद आना स्टार्ट हो गई। तू कूड़ है, कूड़ उन्होंने कहते हैं जड़ा ना, वो ना वो बेसुरा सुनना ना जी बेसुरा नहीं, मतलब मजा आ रहा था मुझे ना, सुकून सुकून मिल मिल रहा था। नींद आ रही थी। ये होता है नाच में भी। और तो पुराने उन्होंने पापा माँ तो की बस नात पढ़ी थी, माँ के सुकून शान पे मिलता है बहुत जो। मजे की, पर अच्छा, मुझे नींद आ हाँ, रही थी। टीम इकट्ठी एक दफा नहीं की मैंने ना। असल में जब मैंने ये शुरू किया ना शो, तो हाजी साहब और अता कसूरी साहब ने मुझे कहा कि ये शो करना है मौज मस्तियाँ, तो अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ था इसका। जी, जी। तो एक शो करना है। इन्होंने पहले कोई यहाँ पे ऐड आ रही थी, मुझसे आने से पहले यहाँ पे जी, आप जी। साहब होते थे, उन्होंने ऐड लगाई थी, खुद कतारियाँ नाम का एक प्रोग्राम है, वो हमने करना है, जिसने हिस्सा लेना वो है, वो नहीं चल रहा था। तो मुझे इन्होंने कहा कि आप ये शो शुरू कर सकते हैं, आपकी तबीयत के मुताबिक है। मेरी तबीयत मजा ही है, हाँ। तो लगता मैंने भी कहा है। कि मैं शुरू कर दूंगा मैं शुरू कर दूंगा। तो फिर मुझे इन्होंने कहा कब, मैंने कहा कल से। मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मैंने तो आपने इस तरह किया, आपने एक प्लान बनाया ना, करना है जो काम करना है वो करना है, अभी मैंने कहा करना है। आपके माइंड में था ना, करना ये कहने का है और मतलब। करूंगा हाँ। में करूंगा, फर्क और होता ये है। जो मुझे- और जो करूंगा कहते हैं वो नहीं कर पाते। तबले वाला करना है है तो ना, ये कर पतीले वाला, ये अता कसूरी साहब ने मुझे
ऊपर But किया। ये बहुत best जी, है। कि ये चेक करो इसको। तो मैं 6 सितंबर का दिन था, 6 सितंबर वाले दिन हमारी रिकॉर्डिंग हुई और वो बड़ा शानदार हमने मिली नगमे वगैरह उसमें गाए। तो उस वहाँ से मैंने शुरू किया। उसके बाद एक और बंदा बुलाया, इमरान शौकत साहब है, वो मुसलसल आ रहे हैं हमारे पास, और एक प्रोफेसर टिल्लू के नाम से वो मुगल साहब थे हमारे, वो अब लाहौर चले गए हैं। तो वो उन्होंने भी काफ़ी काम किया हमारे साथ, काफ़ी मौज मेला मौज मस्ती में लगता रहता था। अब एक और बंदे का इजाफा हुआ है, जग्गा। तो हमें एक ऐसा चाहिए होता है बंदा जो ना, डॉक्टर साहब भी हमारे, डॉक्टर लियाकत साहब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे आके, लेकिन वो हमें एक ऐसा एक किरदार चाहिए, एक ऐसा करेक्टर चाहिए जिसको हम सामने रख के ना वो थोड़ा सा मजा पैदा करें, ठीक है ना। तो वो लोग देखते भी हैं फनी वगैरह हर चीज, जिसका चेहरा फनी हो, थोड़ा सा ना वो इस तरह ही एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन। और वो हमने वो दरियाफत मैंने किया। वो एक सेंट्री का काम करता था, वो क्या कहते हैं उसको, प्लम्बर है। तो मैंने उसको कहा कि आप आ जाओ, कहता आ जाऊंगा। फिर वो 2-3 प्रोग्राम उसको हो गए। तो अब तो सारी वाली जगह जमे आते मिले ने बताया इस तरह बड़ा रौनक लग गया, मतलब मौज मस्ती शो में आपको बड़ा एक जबरदस्त जगह के आने किया से। है ना। हाँ नहीं, एक जगह तो है, तो ये इजाफा मरियम का मरियम हुआ है। नहीं, वो ज्यादा फन जो हम वो करते हैं फन जग्गा पे लेके वो चले ज्यादा जाओ। करते हैं, मरियम उस का- पे सारे मजाक मरियम करते का हैं। ज़ौक़ भी था, मरियम का ज़ौक़ है, आपका ज़ौक़ और था। आप थोड़ी संजीदा थी शायद, पहले आप थोड़ी सी इस तरह थी, ये actually वो adjust morning नहीं show कर रही, के लेकिन दौरान- अभी आप जो कि घुल-मिल वो गई हर हो। किसी का अपना होता है ना कि मुझे जिसमें इंटरेस्ट हो। मरियम को हाँ, थोड़ा हाँ। कॉमेडी में इंटरेस्ट है, लेकिन आप इसमें अच्छी लगती हो। मॉर्निंग शो आपके लिए मुख्तस है और आप इसी में अच्छी लगती बिल्कुल, क्यों नहीं, हो। जरूर खबरदार साढ़े शो के मैं आ जाऊंगी, कल मैं आती हूँ। पापा आपके शो में आए हुए हैं, तो फिर कल मेरा और काम आपके बनता शो है में कि आपको धमकी दे रहे हैं। आ जाओ। ये ठीक है ना, बाद में कि नहीं आना, मैं आऊंगी अब। चलो ठीक है। जी मरियम, मेरा अब आपसे सवाल है कि जब आपने जी। हॉस्पिटल्स में जॉब वगैरह की, और सारी बात इस तरह होता है, फैमिली में बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं, रोकने की फैमिलीज को भड़काया जाता है कि आपने जॉब नहीं करनी, इश्यूज क्रिएट होते हैं। क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? जब ये आपको बहुत मुश्किलात तो ही होंगी, जी, जी, अब ऐसे जैसे जॉब मैंने करने पहले से अब बताया। बिल्कुल इस तरह ही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जॉब और शादी, ये दोनों चीजें इंसान को अपनी मर्जी से करनी चाहिए, किसी की ना सुने आप। नहीं, ये एक मिनट, नहीं, जब parents- शादी का है वो पेरेंट्स को भी साथ अच्छा, ये है। मैसेज ये मैं आपने मेरी बात अभी कंटिन्यू नहीं, आप अभी मेरी अपने बात बारे में कंटिन्यू, कहना। मुझे पता था इस चीज से ना आप पे फर्क बहुत सारे लगा। लोगों को इख्तलाफ होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि जिस तरह की आजकल बेहयाई फैली हुई है और कहना कि वहां पे ही करवानी है। जी, जी। मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ पे आपका माइंड सेट नहीं है, जो बंदा आपको अच्छा नहीं लगता, तो जस्ट अपने पेरेंट्स के लिए चुपचाप आप वहां भी शादी ना करें। आप पेरेंट्स को बताएं कि मुझे ये बंदा नहीं अच्छा। देखो मेरी बात सुनो, जी, मैं जी। आपकी बात कर जी, जी, रहा बोलें। हूँ। ये कुरान और इस्लाम ये कहता है, जो आप कह रहे ये हैं, कहता है जी, क्या बिल्कुल। कहता है कि इस निकाह के टाइम जब उस खातून से पूछा जाता है कि आपको कबूल है, कबूल है। क्यों पूछा जाता है? अगर उसको नहीं कबूल नहीं होगा, नहीं कबूल- कबूल निकाह नहीं होगा। हाँ। ये हमारे मुसल्लत कर दिया गया है हमारे ऊपर, वो कानून लागू यहाँ का है। जबकि इस्लाम ये कह रहा है कि आपको कबूल है। अगर नहीं कबूल तो वो अपनी माँ को कह सकती है, अपने वालिद को कह सकती है, अपने भाई को कह सकती है कि ये रिश्ता मुझे कबूल ये है, हमारे मैं नबियों जोड़ से देती चल हूँ। रहा हाँ, है, जी। ठीक है, कि पहले ये मैं- और लड़की से पूछें कि हाँ तुम्हें मज़हब इधर इस चीज़ की इजाज़त मजहब इस है। चीज की इजाजत मज़हब इस देता है कि चीज़ की लड़की से इजाज़त- अपनी पूछें, पसंद की कर सकती है शादी, लेकिन माँ बाप को एग्री माँ करके बाप के पूछें बगैर उनसे, नहीं, माँ बिल्कुल बाप इस के तरह। बगैर नहीं। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर आपको नहीं पसंद, बहुत ज्यादा ना ये आजकल फैमिलीज में चल रहा है कि फूफो के बेटे से या खाला के बेटे से आप वो कर ट्रेंड्स दें, चल रहे, बिल्कुल इस या तरह। चाचू के बेटे से, सिर्फ फैमिलीज को या अपने किसी फ्रेंड को पापा कहते हैं मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में जोड़ दूं, तो अगर लड़की को वो नहीं पसंद लड़का जो पापा का दोस्त है, तो आप अपनी दोस्ती को जोड़ने के लिए या रिश्तेदारों को आपस में जोड़ने के लिए बेटियों की कुर्बानी ना दिया करें। बेटियां एल्फी नहीं है कि वो आपके रिश्तेदारों को जोड़ें। और फैमिलीज में इशू भी बहुत नकाब क्रिएट हुई करते हैं। हैं, वो ताए पुप्पी और- चाची की तरफ हो जाए, वो मतलब पहले उनकी जो पुरानी अपनी मतलब उनसे इख्तलाफात होते हैं, वो निकालते फिर हैं बाद में उससे। सूरत में निकालते हैं, जी, बिल्कुल। अपने रिश्तेदारों में जो आपका ब्लड रिलेशन है ना, उनके साथ ये उनके हाँ शादी ना करो। मेडिकल भी बिल्कुल कजन मैरिज से मना अच्छा, करती है। दूसरी बात ये है, अगर मिसाल के तौर पे आपने कहीं एंगेज कर दिया अपनी बेटी को या बेटे को अपनी बहन के घर या अपने भाई के घर, ठीक है, वो चाहे खातून वो बीवी है या मियाँ, दोनों में से किसी ने कर दिया, तो माँ है या बाप है, जी जी अगर वो एंगेजमेंट टूट जाती है किसी वजह से, अभी शादी नहीं हुई, तो वो रिश्ता भी टूट जाता है साथ। ये ज़हन में रखिए। टूट जाता है, वो जी, रिश्ता ऐसे साथ में टूट जाता है।
وہ بعد میں بڑی مشکل میں جڑتا ہے کہ یا انہوں نے ہمارے بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ توڑا تھا، اب ہمارا مرنا جینا ختم. آپ اگر باہر کریں گے تو ختم ہوتا تو ہو جائے، کسی کو کیا ہے، رشتے بلڈ ریلیشن ختم نہیں ہونا چاہیے میرے خیال. آپ یہاں پر آپ نے ٹھیک کہا ہے. میرا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں آدھا دن آپ نے اپنا وہاں پہ گزارنا ہوتا ہے. وہاں پہ اگر آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن نہیں مل رہی، مینٹل پیس نہیں مل رہا، تو آپ نفسیاتی مریض بن جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے. بالکل. اگر جاب آپ کی پسندگی نہیں ہے، جیسے وہ 3 Idiot مووی میں بھی انہوں نے اس چیز کو بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ جو آپ بننا چاہتے وہ بنو. اس لیے نہیں کہ پاپا چاہتے ہیں بیٹا ڈاکٹر بنے تو بیٹا ڈاکٹر بننے چلا جائے. یہ ہونا چاہیے کہ اگر اسٹڈیز میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے تو پریشر ہے. اچھا، میں نے اپنی لائف میں مریم بہت مشکلیں دیکھی ہیں، بہت مشکلات میں جو کام نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بھی کرتا رہا ہوں. یہی بات جو آپ والی، اصل میں یہ کام میں یہ کرنا چاہتا تھا شوبز کا. تو جب میں شوبز میں آیا تو مجھے سکون سا، جیسے ایک روح کو تسکین ملتی ہے کہ یہ میرا کام تھا، یہ اب میں ٹھیک آ گیا ہوں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. جو جاب ہوتی وہاں پہ ذہنی سکون ہونا ضروری ہے. دوسری بات، میں نے شادی کی، اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ کو نہیں سمجھتا، آپ کے دماغ کی کیمسٹری اس کی کیمسٹری سے نہیں میچ کرتی، اس رشتے میں، اس تعلق میں سکون نہیں ہوتا. اسی طرح تو یہ میرا پوائنٹ تھا کہ اگر لائف پارٹنر جو ہے آپ کی پسند کا نہیں ہے، آپ شادی نہ کریں. اپنی شادی اپنی مرضی سے کریں اور اپنی جاب اپنی مرضی سے کریں. بالکل. زندگی آپ شادی کرتے ہیں، زندگی آپ نے گزارنی ہوتی ہے کہ کس طرح لائف پارٹنر. اور اس بعض ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ لائف پر شکی مزاج ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. جس ٹائم فار ایگزامپل لے لیں، سب سے بری چیز وہ ہوتی ہے شک کرنا. بالکل، بہت زیادہ. اور مجھے یہ 101 منٹ ادھر آپ کی بات، مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ کوئی شک کرتا ہے نا، اس کا کریکٹر خود کا گندا ہے. میں یہی کہنے لگا تھا آپ کو کہ نفیسہ، کہ ایک لڑکی جب شادی اس کی ہوتی ہے تو وہ سسرال جاتی ہے نا، جی جی، وہ اکیلی ہوتی ہے، بالکل اپنا سب رشتے چھوڑ کے جاتی ہے. وہ جب اس گھر میں جاتی ہے تو وہاں پر اس کو نندیں ملتی ہیں لڑاکی، سانس ملتی ہے لڑاکی. ہر ایک کی بات میں نہیں کہہ رہا، بالکل اس طرح زیادہ تر اس طرح کے لڑائیاں جب ہوتی ہیں، ساس اور بہو کا لڑائی جو ازل سے ہوتی آ رہی، وہ بیچاری جب وہاں جاتی ہے تو وہاں اس کو وہ نازوں میں پلی ہوتی ہے. تو وہ جب اس کو تحقیر والے لہجے میں بلایا تھا تو اس کو برداشت نہیں ہوتا. اس نے کیونکہ وہ شادی چاہے اپنی مرضی سے کی ہو، اس کو کیا پتا کہ وہ کیسے نکلنے رہو. یہ سوچ سمجھ کے یہ اچھا، یہ مطلب ایک سانگ بھی ادھر آپ کو کہنا نازوں سے پلی بیٹی میں وہ یہ تھا کہ نازوں سے تجھے پالا اکثر اگر بس سنتی تو خود کو رونا آ جاتا ہے. پھولوں کی طرح بچپن میں جھلایا ہے تجھ کو باہوں نے میری جھولوں کی طرح، میرے باغ کی اے نازک ڈالی تجھے ہر پل نئی بہار ملے. یہ سن کے رونا شروع ہو جاتا آنکھوں سے. میں تذکرہ کر رہا تھا رفیع صاحب کا یہ سانگ، بہت فینٹاسٹک ہے سانگ، بہت زیادہ. اور آنکھوں سے اوبویسلی مطلب کہ نا میڈم نور جہاں کا پنجابی کا ہے اس طرح کے لڑکیوں کے بارے، وہ پنجابی کا ہے، تیاں تے تن پرایا وے باملا، وہ بھی بڑا شاندار تھا. اسی طرح دونوں سننے میں رلا دینے والے یہ ہیں. بالکل. اچھا، میں کسی کے سامنے روتا نہیں ہوں، تو جب بھی میں سانگ سنتا ہوں نا اکیلے میں، پھر میں روتا ہوں. وہ اس طرح کا سانگ ہے کہ مینٹلی مطلب ایموشنل کہا جاتا ہے سانگ. اب جملہ مصرع میں نہیں کہا سکا تو رونے کی بجائے شاید نہیں کر لیتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. جی باجوہ صاحب آپ کی کوئی فیوریٹ ہابیز تو بتائیں. فیوریٹ ہابیز پہلے میں بتایا تھوڑا سا آپ کو، جب پروگرام شروع ہوا میرا میوزک لور ہوں میں، اور نہیں اس کے علاوہ بھی آپ ہوتے ہیں. بالکل ہابیز ہیں. اور میوزک مجھے پاکستان کا بھی بڑا پسند ہے. میڈم نور جہاں کو قصور کی ہیں، میڈم کو بہت پسند کرتا ہوں ان کے سانگ کو. اور مسعود رانا صاحب پاکستانی سنگر تھے، محمد رفیع صاحب، اور فوک میں اگر دیکھا جائے عالم لوہار صاحب تھے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی. اور ہابی جو تھی میری، جو میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں بڑا شوقین تھا کرکٹ کا. اور میں خود بھی میرے خیال میں اپنی لائف کے 35 سال تو کرکٹ کھیلا ہوں. بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، کیپٹن بھی رہا ہوں، بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے میں نے آل راؤنڈر تھا. تو جب وہ ایک اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی اس کو اسپورٹس کو بھولتا بھی نہیں. تو میچ کو دیکھنا، پھر پاکستان کا میچ لگنا، تو کیا کرنا کہ وہ اس دور میں لائیو میچ نہیں چلتا تھا، ریڈیو پہ کمنٹری آتی تھی. اب مثال کے طور پاکستان کی ٹیم ادھر گئی ہے ویسٹ انڈیز میں، تو ویسٹ انڈیز کا اور پاکستان کا 10 گھنٹے کا فرق ہے ٹائم کا. 10 گھنٹے بعد میں میچ شروع ہونا یہاں سے، یعنی کہ یہاں اگر دن کے 10 بجے میچ شروع ہوتا ہے تو وہاں رات کے 8 بجے میچ شروع ہوگا پاکستان میں.
तो सुबह शहरी का टाइम खत्म होना था और मैच मुझे भी देखने का बड़ा शौक था, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था। हम तो एक बॉल जो होती थी ना, सुनते थे देखते नहीं, तो उस वक्त कमेंट कानों में कान के साथ रेडियो लगाया ना, बड़ा क्रेज होता था। वो हमें वो दौर में इंग्लिश कमेंट्री थी, वहाँ उर्दू कमेंटेटर लेके नहीं जाते, और बड़ा गौर से सब क्या होगा वो। अब तो दोनों होते, इंग्लिश का अलग होता है, कमेंट्री कर रहा होता है, और मतलब उर्दू में लग कर रहा होता है। जी मरियम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने ये चैनल में काम कर रही हैं C49 में, आपको घर से परमिशन मिल गई थी इजीली क्या इधर काम करते हुए? होता है ना पेरेंट। मेरे भाई ने फर्स्ट डे बताया था कि वहाँ पे ना उन्होंने इस तरह से एक टिकट लाया हुआ है कि अपना टैलेंट शो करने के लिए हम आपको मौका देते हैं। तो फर्स्ट डे जब मैं आई थी ना, मेरी जो फर्स्ट इंटरव्यू वाली वीडियो थी, मेरे भाई को बस पता था, घर में अभी किसी को भी नहीं पता था, तो मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो इन्होंने यूट्यूब पे दे दी थी। मतलब इनको अच्छा लगा मेरा बोलने का स्टाइल, या मैं भी वैसे ही कितने व्यूज आते हैं, क्या कमेंट आते हैं, क्या था दिया तो अब वो वीडियो दे दी, और फिर मैं कॉल कर रही हूँ, आपने मेरे से पूछा भी नहीं, वीडियो दे दी और मुझे आगे से ये कहा जा रहा है तो तुम चैनल पे जॉब के लिए आई थी, तुम्हें वीडियो पोस्ट करने से क्या इशू है? तो मैंने तो भी घर बात भी नहीं की, तो फिर घर वालों को पता चल गया। तो मेरा एक कजन है, चाचू का बेटा, मैं नाम नहीं लूंगी, वो मेरी हर एक्टिविटी पे नजर रखता था। वो पकड़ पकड़ के मेरी वीडियोस ला के चाचू लोगों को, मामू लोगों को, सबको बैठा के दिखा रहा होता था, ये देखें ये देखें। तो उसने बता दिया था घर वालों को, मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई बताने में। मैं तो अभी सोच रही थी, अल्फाज को तरतीब दे रही थी, क्या कहूँ, पता चल गया डांट ही पड़नी थोड़ी सी खैर है, फिर मैं रिलैक्स हो गई। अच्छा, एक जुमला है बहुत बड़ा कि अपने बारे में आप कभी गलत मत सोचें। इसी तरह ये ठेका आपके रिश्तेदारों ने पहले से उठाया। ये वो रिश्तेदार हर बात पे तनकीद करते हैं। जी नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। सर बाजवा साहब और मरियम नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच।